That is अच्छा, what my thought is. what is your view on women keeping options of men? Do you think women keep और मैं men keeping options of men women. का पॉपुलेशन ही कम है बेचारों का, कहाँ तो कम है? कम है, सॉरी मेन का ज्यादा है, विमेन का कम है, तो हाँ. दैट्स द रीजन विमेन आर ऑन द ब्राइटर साइड. Yeah. मैं यहाँ पे ना But at the same time, how many men would fit into those options? देयर आर वेरी लेस जो अच्छे दिखते हैं ना, Yeah. स्टार बन जाते हैं, तो दे हैव ऑप्शंस. Okay. जैसे अभी बहुत सारे वो चल रहे हैं, कौन? जो पहले मीटू चला था ना, एक याद है? Yeah. अभी रिसेंटली भी ऐसा कुछ हुआ जिसने सूर्य कुमार यादव पे कुछ बोला, वो मेरे डीएम्स में है. करण औजला ने बोला कि यू read about that right, कि थोड़ा. देयर हैव बीन लॉट ऑफ थिंग्स लाइक, Yes, कार्तिक आर्यन. हाँ. हाँ बहुत सारा एक्सपोज हुआ जो अभी. तो गर्ल्स कीप ट्राइंग, बॉयज कीप ट्राइंग, बट मेरा एक चलो मैं किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है? एक बार क्या होता है, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से फोन पे बात कर रही होती है, शॉपिंग मॉल में होती है, और कहती है कि बेबी आई एम जस्ट शॉपिंग राइट नाउ एंड आई विल बी होम, सो आई एम बाइंग दिस न्यू शैम्पू कॉल्ड लॉरियल. वो कहता है अरे बट यू टोल्ड मी कि यू यूज सनसिल्क. ठीक है, कहती कि नहीं, आई थॉट आई माइट यूज इट लेटर. दिस इज द क्रक्स. इसका ये मतलब है कि तुम अभी जो हो सनसिल्क हो, बट अगर जो लड़के लाइन में लगे हुए हैं, तो इफ दे स्टे इन द क्यू लाइक लॉरियल, या फिर उससे बेटर मिल गया कोई, सनसिल्क से बेटर लॉरियल है राइट, लॉरियल मिल गया, तो वो लॉरियल को चेकआउट करके यूज करने लग जाएगी. And this goes over the gender as well. I would like to quote the great Mr. Shah Rukh Khan from Dear Zindagi when he's talking to Alia Bhatt and telling her कि आप जब एक शोरूम पे जाते हो, आप बहुत सारी कुर्सियां देखते हो, सोफास देखते हो, what do? घुसते ही जो कुर्सी अच्छी लगी वो तो नहीं खरीद लेते हो. You go, you see, you check those chairs, you sit, you find it कौन सी comforting है, किस पे बैठ के अच्छा लग रहा है, how is it looking, how will it look in your house, and how will it look in your life, and then you choose. So similarly, choosing a life partner आज के time पे, it is the most important thing that you are going to do for yourself. So I am not talking about keeping options, but yes, I can always say about that, if you have many options, so it is good that you are sane enough to choose the right one for yourself. तो what you're trying to say is पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो. देखो इस्तेमाल वाली चीज तो मैं It's just a metaphor. It's a metaphor. It's a metaphor. So yes, to know. देखो अब वैसा टाइम नहीं है ना कि अरेंज मैरिज के लिए गए कि लड़की घूंघट में है, घर वालों ने बोला ऐसे शादी करनी है. But tell me what, I'll give you a situation. Boy and girl are in the same office. Then the girl moves to a different team where she got an opportunity to grow. Okay. ठीक है? And she moves to a newer office. But they were committed. They were in a relationship and they planned they'll get married. Okay. But when she moves to a newer location, she finds more opportunities because वहाँ पे और ज़्यादा better लोग हैं, क्योंकि तुम एक higher level पे एक leadership level पे काम कर रहे हो. तो she gets hit by a lot of people. Obviously, office में exchange होते हैं. तो would it be ethical enough कि वो किसी के साथ नए relationship में चले जाए, though she has committed to the boy below? What is your take on that? Okay. Am I asking some? No, you're asking the correct question. अच्छा, जब दो लोग साथ में मिलते हैं, when they plan to get married, they talk about compatibility, correct? But compatibility changes over a period of time because as human beings we grow, we change. हम same नहीं रहते. हमारी जो आदतें पहले थी अब नहीं है. We will change. Maybe I have become more ambitious. Maybe you want to enjoy life slowly. You don't want to go into hush life. So अगर वो लड़की उस लड़के के साथ committed थी and उनका जो plan था regarding कि हम शादी करेंगे, ये हमारा रहेगा, but at the same time अगर उनके बीच में कुछ genuine अगर ऐसी problems हैं wherein लड़की को ये लग रहा है कि I am very ambitious, I want to grow further, this is how I would want my life to look like. लेकिन लड़के का वो नहीं है मन. लड़का इज लाइक आई वांट टू रिलैक्स और ये मेरी लाइफ है, इफ यू कैन एडजस्ट इनटू माय लाइफ दिस. तो मुझे लगता है कि ऐसे रिलेशनशिप में अलग हो जाना बेटर है, बिकॉज जब आप शादी करोगे यू वुड वांट टू गो ऑन वन रोड कि ये हमारा रास्ता है, हमें इस पे चलना है. बट अगर आपके रास्ते अलग अलग हो रहे हैं तो इट इज बेटर नॉट टू गेट मैरिड
and create unnecessary complexities. अगर वो नहीं है, लड़का is also in line with the लड़की what लड़की wants, तो I think ethically they should stay together. अगर उसके बावजूद लड़की जाती है कि नहीं मुझे क्योंकि एक बेटर ऑप्शन मिल गया है, everything is nice, compatibility is there, love is there, but क्योंकि मुझे suddenly I have found more shinier person, so of course I would say that it's maybe close to cheating. It's not cheating. I'm close to, of course, as in You found someone, no, it's cheating. You as took in a step forward, you got in a relationship without letting the other person know. So either you tell that person, sorry, Either you it's have not it, happening, unhook and yourself, then yeah. hook it to other person. Yeah, मुझे लगता है कि अगर आप एक इंसान से प्यार में नहीं हो, genuinely प्यार में नहीं हो, it is better to just break away from that. नहीं तो अगर तुम प्यार में होगे ना, तुम्हें ऊपर जितनी बड़ी शाइनी चीज मिले वो दिखेगी नहीं. Explain, define love to me. So for me, love is the most difficult thing and the most easiest thing. So for me, मेरी लाइफ की सबसे अच्छी खुशी की जो भी बात होगी, I would want to tell it to one person. मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख होगा, I would want to tell it to one person. And without being judged, I know मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं बहुत गलत हूँ, मैं बहुत सही हूँ, मैं कैसी भी हूँ, this person will always be there with me with his open arms. अगर मेरे लिए एक ऐसा इंसान है, so that is love. मेरा ना बहुत अलग व्यू है इसको लेके. मेरे लिए love is you, yourself. It's not someone else, to be honest. Okay. मैं जैसे बताता हूँ, if I go to my spouse और मैं उनसे कोई बात करता हूँ, no matter what, positive, negative, रोना पीटना हंसना गाना, लेकिन उसकी वजह से जब मैं उसके साथ हूँ तो मेरे अंदर कुछ इमोशंस चेंज हो रहे हैं और वो मुझे ना एक बहुत ठहराव अच्छा लग रहा है. ठीक है. और सिमिलरली जब मैं अपने बच्चे या अपनी मदर के पास जाता हूँ, वही सेम चीज फील हो रही है. तो मैंने देखा कि मैं अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपनी मदर, अपने फादर, XYZ चीजों को यूज कर रहा हूँ अपने अंदर वो फीलिंग निकालने के लिए. तो किसी और में नहीं है लव. लव सिर्फ मेरे में है. लव एक्चुअली मेरे में है. इट इज जस्ट मैं उनको एज अ टूल यूज कर रहा हूँ, जो बहुत मीन साउंड करता है ह्यूमन लाइफ के अंदर, कि दो इंसान प्यार करते हैं, बेसिकली दो इंसान कंपैटिबल होते हैं, वो साथ आते हैं और कुछ ग्रो करते हैं. लेकिन जब तुम ग्रो करते हो तुम्हारे अंदर से ना एक चीज रिलीज होती है. यू कैन कॉल इट लव, यू कैन कॉल इट इमोशंस, यू कैन कॉल इट सम केमिकल्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. यू कैन कॉल इट गॉड. वो भगवान रिलीज होते हैं और तुम्हें ना बहुत बटरफ्लाइज महसूस होते हैं. वो प्यार है. Did I convince you? See, pyar is something like you can't really have one definition. हाँ, you cannot. It is a feeling. It is a POV. हाँ, it is a POV. किसी के साथ रह के आपको लगता है that this person is my home. Wherever I'm in the world, I want to go to this person. So मेरे लिए शायद वो डेफिनेशन है. हाँ, लेकिन वो आपकी डेफिनेशन ठीक है, लेकिन आप वहां क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि आपको वहां पे कुछ सेफ महसूस होता है. हाँ. आपको वहां पे घर लगता है. हाँ. क्योंकि जब आप घर में होते हो तब आपके अंदर वो केमिकल्स रिलीज होते हैं. हाँ. जब आपको बहुत रिलैक्स महसूस होता है, तो दैट गाय is your key to your chemical, to your love. I think तो चाबी मत बदलना. अच्छा, देखो, irrespective anything, हर किसी को genuine लाइफ में एक बार प्यार होना चाहिए. Because यार तुम प्यार बहुत बार हो सकता है यार, ऐसा नहीं है. नहीं, मैं कह रही हूँ एक बार तो जरूर होना चाहिए. एक तो ना I want to clear this out to this generation and even my friends as well, जो हमारी generation की. We can fall in love many times. Many times. It is okay. But एक और difference भी है. There is a difference. क्या है कि एक तो love है, एक तुम्हारा fucking sexual desire है यार. तुम उसको love से confuse मत करो. 99% people fling off with their sexual desire or anything, they consider love. हाँ. मैंने लोगों को रोते हुए देखा है और 2 दिन में वो चुप हो गया. मैंने कहा ठीक है यार, सॉरी मयंक. नहीं, मैं ये कह रही हूँ, आपकी बात सही है कि 5-6 बार प्यार हो सकता है और हो सकता है कि 2-3 लोगों से एक साथ भी प्यार हो सकता है. दैट इज ओके. बट मैं ये कह रही हूँ कि आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनको जिंदगी में कभी प्यार ही नहीं मिला, वो फीलिंग ही नहीं मिली. यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोज पीपल जिनकी शादी हो गई या जिनके स्पाउस ने कभी उनका हाथ पकड़ के कभी बैठे नहीं, उनको कभी किसी से वो रियल केयर और कंसर्न ही नहीं मिला. तो मैं ये विश करना चाहती हूँ मतलब हर किसी इंसान को जिंदगी में एक बार प्यार होना चाहिए और वो प्यार मिलना चाहिए.
उसके बाद होता रहे कोई बात नहीं, बट वो बिना प्यार की जो जिंदगी होती है ना, यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग। आई गेट इट, मैं सो समझ गया हूँ आप इसीलिए क्या मेरे को कहना लगता चाह है कि हर किसी को एक बार जेन्युइनली प्यार हो, और जिससे प्यार हो उसे वो प्यार एक बार मिले।